Talking about the concept of father figure, let's take it as a person who has influence. A person who has influence on the people who are considering him or her as the father figure. Yeah. Now, if you're a person of influence, that is a huge responsibility on your shoulder, because whatever you say, whatever you utter from your mouth could be believed. बिल्कुल. So, be it something positive or be it something negative. I, being on the influential position, either I can bring you from the depths of insecurities to the peak of confidence बिल्कुल. through my words, or I can bring you down from the highest self-esteem to the rock bottom through the words that I'll utter from my mouth. Be it a father, be it a boss, be it a teacher, be it a पीर फकीर whatever. अब देखिए पीर फकीर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि बेसिकली इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट, जो हम इसको साइंस भी बैक करती है, और दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी पीर फकीर्स आउट देयर. यू कैनॉट चैलेंज दिस कॉन्सेप्ट के नहीं ये तो सारे पागल हैं, दैट्स व्हाई इतना रश लगा हुआ है. हमें लगता है हम ही सियाने बाकी सारे पागल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. Those people, they're getting something from them, that's why they are keep coming back. वो डिमांड और सप्लाई वाला हिसाब है ना. अगर सप्लाई ना मिल रही होती तो डिमांड ख़त्म हो चुकी होती. अगर ये बिल्कुल ये चल ही ना रहा होता निज़ाम तो अभी तक इतने रश ना लगे होते और आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है. डिमांड तो बहुत हाई है. डिमांड क्यों हाई है? बिकॉज देयर इज़ अ सप्लाई, समथिंग इज़ हैपनिंग. If you understand the concept, what is happening is that person who is the influential person, you call it peer or you call it fakir, whatever your belief is, I respect that. But the person who is of influence, what he does is that उसके पास एक बंदा आता है जिसका जो होपलेस होता है और उसे लगता है, इस यकीन के साथ आता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा. So for example, if I have a back pain, instead of going to a doctor, I believe that I go to this person who for some reason has this superpower that he can heal me. I go to that person with an empty vessel that does not have any hope in it. I go to that person and I say, yaar, I have this problem. Now that person of influence, he pats me on the back and says कि तू ठीक हो जाएगा. With all certainty and with all confidence. तुझे बाबे की दुआ लग गई है. Yeah. With all certainty and confidence, he says कि तू ठीक हो जाएगा. And because I had a belief and I think of him as somebody who has influence over me, I believe in it and it actually happens. After 1 week, I get cured or I get healed. That's why these people get coming back to these people. Better. So if you are a person of influence at your workplace, at your home, be very wise in having the interactions that you are having with those people who you have influence over. On the other hand, if you're a person who are seeking a mentor or seeking आपको कोई क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की. ज़रूरत इसलिए है कि because it saves a lot of time for you. Instead of me going out there doing all the mistakes on my own and learning from my experience, it's a one way of doing things. कि मैं अपने experience से गलतियाँ करूँ, सीखूँ, learn करूँ, फिर change करूँ और फिर दोबारा से बेहतर करूँ. On the other hand, if I find Zan, for example, and Zan has covered that journey before me, I go to Zan and I consider or aspire to be like him, तो मेरे जैन जो है वो 4-5 साल मेरे जो है वो बचा सकता है. Because he has covered that journey. He knows what to do and what not to do. So he'll tell me कि यार तूने ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना. और वो मुझे सिर्फ देख के स्कैन करके मुझे बता देगा कि तेरे अंदर कौन सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं. Because he has covered that journey. So मेरे तो 4-5 साल अगर एक अच्छा मेंटोर मुझे मिल जाए तो he can save me 4 or 5 years. That's that's the hack, cheat code. अच्छा, जिस तरीके से मैंने सवाल किया और जिस तरीके से आपने आंसर किया ना, आई थिंक उधर ही 2 आइडियोलॉजीज़ बन जाती हैं. बिकॉज आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि एक सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. लेकिन आई थिंक यू थॉट दैट जो ऊपर जो बंदा बैठा होता है, द फादर फिगर और द मेंटोर, पर आपके नज़दीक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, विच इज़ आई थिंक मॉडर्न अप्रोच. लेकिन इफ़ यू लुक एट आवर सोसाइटी ना, तो आपने अक्सर ड्राइवरों से या फिर कहीं अभी गाड़ी का काम करवाने गए हों तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने अपनी स्टोरी कभी उनकी आप बीती सुने, तो मैं अपने उस्ताद के पास आया, पहले तो मैं उस्ताद की मारें खाई और बड़ा टाइम ऐसे चलता रहा. फिर एक दिन उस्ताद ने कहा जब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और फिर इन अ ड्राइवर्स केस उसने पहली दफ़ा उसको सलफ मारना सिखाया एंड दिस एंड दैट. मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दैट
कि उस्ताद होता है उसकी पहले मार खानी पड़ती है फिर इवन इफ़ यू गो लुक एट दिस म्यूज़िक सोसाइटी उसके अंदर भी यही है कि जो पुराने उस्ताद हुआ करते थे वो शुरू से ही आपको म्यूज़िक लेसन्स नहीं देते थे पहले वो आपका बिहेवियर देखते थे कि यार ये बंदा वाकई ओबीडियंट है, इज़ ही हेयर टू सीक या फिर ऐसी टाइम्स आया करने आया, तो वो आपका सिंसेरिटी लेवल चेक कर रहे होते थे। आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट एक वो नोशन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पुराना एग्जिस्ट कर रहा है और वो फैमिली लेवल्स तक भी आ चुका है। सो अक्सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ओबीडियंस है वो सीख कर रहे होते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट्स के से कि आप ऐसे हो जो देन समथिंग विल हैपन टू यू। सो डू यू थिंक यार सब्जेक्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर पहली मेंटोर की बनती है? ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल है एक, कोचेबल होना. Are you a coachable person or not? Are you a trainable person or not? And most of the organizations, when they create a hiring process, तो एक जो स्किल वो लोगों में ढूंढ रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं क्या ये बंदा कोचेबल है या नहीं है. क्योंकि हम या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि यूनिवर्सिटीज़ इनको बड़ा कोई ज़बरदस्त स्किल्स या ट्रेन करके तैयार करके भेजेंगी. उन्हें पता होता है अल्टीमेटली हमने इनको ट्रेन करना है. और सारों का एक ट्रेनिंग का भी पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुजार के वो उनको ट्रेन करते हैं. तो सवाल सबसे पहला या सबसे बेसिक बुनियादी फंडामेंटल चीज़ जो वो देख रहे होते हैं कि क्या ये बंदा कोचेबल है या नहीं है. अब कोचेबल होना से क्या मुराद है? कोचेबल होने से मुराद ये जो आपने बात की, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोचेबल हो, कि वो सीखे. कोचेबल से ये मुराद है कि आई एम नॉट ऑफ एन ओपिनियन दैट आई नो एवरीथिंग. यू नो, ये बड़ा कॉमन एक हमारे लोगों में ये एक मसला पाया जाता है, ख़ास तौर पे एडल्ट्स में. क्योंकि द मोमेंट आई बिकम एडल्ट आई थिंक दैट आई नो एवरीथिंग एंड नाउ आई नीड नॉट समबडी टू टेल मी दैट दिस इज हाउ इट शुड. मेरा थॉट प्रोसेस है अगर वो किसी कंक्लूजन के ऊपर जा रहा है तो वो कंक्लूजन सुपीरियर है बाकी कंक्लूजन्स के निस्बत. यस, सुपीरियर नहीं है तो मैं कहूँगा वो अल्टीमेट रियलिटी है. यहाँ उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है. या वही हकीकत है. जो मेरी हकीकत है ना वही अल्टीमेट हकीकत है. whatever is my perspective, whatever way I see the world, that is the ultimate truth and ultimate reality. But that's not how it is. Because we all have different perspectives and we all know something. And no one knows everything. So from Zen, I can learn a lot of things that Zen knows because he has different experiences. You know, from my perspective, I had different experiences and you can learn something from me. So I know something, you know something. So if you have this mentality that I know everything and I have reached to the pinnacle of intellect, so that's something to be worry about. Because लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है और आज के दौर में तो नॉलेज इज़ नो मोर अ सुपर पावर. पहले तो हम कहते थे नॉलेज इज़ पावर, बट इन टुडेज़ वर्ल्ड जितना एक न्यूरो सर्जन को न्यूरो सर्जरी के बारे में इल्म है उतना आपको भी है. जितना नॉलेज उसको है उतना आपको भी है ओवर वन क्लिक. यू कैन पिक योर फोन एंड यू कैन लर्न ऑल अबाउट न्यूरो साइंस. But the difference between you and a neurosurgeon is that he has utilized that knowledge और उसने फिर वो अपनी मसल मेमोरी बनाई है और उसको पता है कि how do I utilize that knowledge whatever I have into practical world. But on the other hand you only तो आपको सिर्फ जानने की हद तक पता है. So knowledge is no more super power because पहले तो ये होता था ना कि जिसके पास किताब है तो वो एक फिजिकल सिर्फ फॉर्म में होती थी. वो रूमी जब अपने वो मौलाना रूमी बनने से पहले के दौर में जब वो एक आम से सिर्फ स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने किताबें लिखी हुई थी, तो वो जहाँ ट्रैवल करते थे उनके साथ वो किताबें भी ट्रैवल करती थी उनकी बग्गी के अंदर. बिकॉज उस टाइम पे नॉलेज वॉज समथिंग वेरी पावरफुल बिकॉज नॉट एवरीबडी हैड एक्सेस टू दैट पावर. यू नो, व्हेन समथिंग इज इन लो इन डिमांड वो फिर पावरफुल बन जाती है. लेकिन वो जब एक्सेस सबके पास आ गया तो उसकी पावर तो वो फ़ौरन से वो ड्राई आउट हो गई. तो अब नॉलेज तो सबके पास है लेकिन मुझे कौन सा नॉलेज यूज़ करके अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है या स्किल या एबिलिटी डेवलप करनी है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सो फॉर अ सब्जेक्ट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट there is so much that I can learn from people who have reached there where I want or I aspire to reach. So it's very okay to ask for help and to learn from somebody. So that is a skill. Again, I'm referring back to the point where I've started. Again, coming back to the point, do you think it is an innate skill कि बंदा पैदा होते ही वो quality अपने अंदर लेके आता है या फिर it is something that
develops in result of a person's relationship with their mentors. देखिए बच्चा पैदा तो कुछ भी लेके नहीं होता Yeah. है ना, वो तो उसको सिर्फ अल्लाह ताला ने तजस्सुस दिया होता है, एक सलाहियत है Yeah. तजस्सुस की, उसके अलावा तो उसको कुछ नहीं दिया होता. तजस्सुस के ज़रिए वो जानता है, उसके अंदर वो एक होता है, ये क्या है, Curiosity ये क्यों होता है, ये बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, ये गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है. बिल्कुल. ही हैज सो मेनी क्वेश्चंस. ये काला क्यों है, तो ये नीला क्यों है, वो बार बार सवाल करेगा, बार बार करेगा, बिकॉज ही हैज़ दैट सेंस ऑफ क्यूरोसिटी इन हिम. Yeah. With that curiosity, he builds all the competencies and skills. As I said in the beginning, that this being coachable, having this learning and growth mindset, that is a skill. And that skill can be developed over a period of time. Everything that you see around people possessing, everything is a skill. Yeah. Communication is a skill. Being charismatic is a skill. Being confident is a skill. And that can be acquired through persistence and hard work. अच्छा, modifying this discussion that we are having, पिछली पॉडकास्ट में you introduced a concept जो मुझे पहली दफ़ा पता लगा, accountability partner का. Yeah. कि एक जो कोची होता है वो अपने कोच को accountable होता है, right? Yeah. अब incorporate it seems very easy कि यार चलो ठीक है, एक बंदे को अपनी बड़ी एज में जाके रियलाइज़ हो गया कि यार दिस इज़ द स्किल दैट आई नीड टू एक्वायर, और उसको एक्वायर करने का तरीका ये है कि आई गो टू द राइट पर्सन, और ज़ाहिर बात है दैट राइट पर्सन हैज़ दिस क्राइटेरिया कि यार आई यू विल बी अकाउंटेबल टू मी, राइट? लेकिन जनरली आई थिंक अगर ह्यूमन नेचर को देखा जाए तो वी नेचुरली डोंट लाइक टू बी अकाउंटेबल टू पीपल, राइट? ख़ास तौर पे वही जब आप कह रहे हैं कि आप वो जब प्यूबर्टी हिट करता है, बच्चा जवान होता है, अडल्टहुड में जाता है, तो वी लाइक टू बी फ्री स्पिरिट्स. हम कहते हैं कि वी वांट लिबरेशन, हमें कोई पूछने वाला ना हो, वी वांट टू टेक मेक आवर ओन पाथ, और हम किसी को अकाउंटेबल ना हो. Yeah. तो डू यू थिंक दैट अकाउंटेबिलिटी, या फिर वही बात आ जाती है, वही स्किल टू बी कोचेबल, आई थिंक इट इज़ द सेम थिंग एज बीइंग अकाउंटेबल, or having the sense that yeah, I'm accountable to someone, that sense of responsibility. Do you think that is also something that can be built? All right, so पसंद तो किसी को नहीं होता. वो मोहम्मद अली भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन व्हाट ही डज, व्हाट ही डिड, वो भी कहता था कि ट्रेनिंग, आई यूज्ड टू हेट ट्रेनिंग. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ट्रेनिंग, बट मेरी ज़रूरत थी ट्रेनिंग. सो अगर तो मैं कंफर्ट के अंदर हूँ तो सबसे ज़्यादा तो इंसान को कंफर्ट पसंद होती है ना, और कंफर्ट के अंदर एक चैलेंज ये है कि उसमें ग्रोथ नहीं है. सो अकाउंटेबिलिटी किसी को पसंद नहीं होगी, कि मैं अकाउंटेबल हूँ किसी को. वी वांट टू लिव अ फ्री लाइफ, वी वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, बट इफ आई वांट टू लिव समथिंग दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अबव एवरेज, व्हिच वी कॉल, then I have to do certain things which is not which does not come naturally to me. So being accountable, अगर it does not come naturally to me, आपने कहा कि human nature है कि हम free रहना चाहते हैं, so I have to do it consciously. मुझे फिर वो ज़बरदस्ती वो करना पड़ेगा, अपने आपको एक टास्क देना पड़ेगा क्या, this is what you have to do. So उसमें आसानी आपके लिए अगर मैं कर दूँ तो, या किसी के लिए भी जो ये सुन रहा है, आसानी अकाउंटेबल होने के लिए सबसे बड़ा सवाल जो आप अपने आप से करेंगे ना, कि मैं इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई इज़ देयर अ नीड टू हैव अ फादर फिगर और हैव अ मेंटोर और हैव अ कोच. जब आपकी वाई को आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना, वो फिर एंकर के तौर पे काम करती है वाई. जब मुझे पता होगा वाई डू आई नीड to learn, for example, how to communicate better. Why on earth do I need to learn this skill? Why on earth do I need to learn XYZ skill? जब मेरी why बड़ी तगड़ी होगी ना, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा accountable ठहराने का खुद को, कि now I need to have an accountability partner whom I'm accountable to, and I'll get things done. This is the reason why. So you have to always have to start with the why. Yes. I mean, the reason I thought this topic was very important, क्योंकि योंग की साइकोलॉजी है, वो ये कहता है कि यार क्योंकि देखें फादर फिगर का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपका रिलीजियोसिटी के ऊपर बड़ा होता है, आपके दीन, आपके ईमान के फेथ के ऊपर बड़ा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली योर रिलेशनशिप विद गॉड इज़ ऑल्सो ऑफ अकाउंटेबिलिटी. But if you are not able to make yourself accountable to a father figure, a mentor, your own father, your teacher, your boss, then it is going to be very difficult for you to hold yourself accountable in front of an ultimate entity, your creator, right? Yeah.
तो आई थिंक दैट थिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. बाकी वो आज़ादी भी जो आप कह रहे हैं ना, आज़ादी की बात, तो आज़ादी भी जब तक वो उसके साथ ग़ुलामी का थोड़ा बहुत या लिमिटेशन का थोड़ा बहुत एलिमेंट नहीं है ना, फिर तो वो बिल्कुल एक अनडिसिप्लिन्ड और एक जंगल का कानून हो जाएगा. अगर हम हर चीज़ में फुल आज़ादी दे दें आपको, तो उसके लिए भी थोड़ी लिमिटेशन, थोड़ी बाउंड्रीज होना बड़ी ज़रूरी होती है, ताकि वो जो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी हो. बाकी अब मैं अपनी डिस्कशन लेके आऊँगा ऑन सब्जेक्ट से मूव करके मेंटोर के ऊपर, यहाँ पर फादर फिगर के ऊपर. फादर फिगर क्योंकि वो उसको अगला उसका सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटेबल है, तो ही इज़ बेसिकली द जज ना. उसने अल्टीमेट अपनी जजमेंट देनी होती है कि यार दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, दिस इज़ वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, राइट. सो उस जजमेंट के अंदर डू यू थिंक यार फादर फिगर काफ़ी जगहों पे गलतियाँ कर रहे हैं. I'll start from a very basic case study of a student and a father, right. क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि टीचर्स के साथ हमारा उस तरह 1-on-1 रिलेशनशिप नहीं होता. बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर होता है, लेकिन स्टिल टीचर्स आपसे नहीं पूछते कि यार आपके ग्रेड्स बुरे क्यों आए हैं. अल्टीमेटली हमें खौफ होता है अपने फादर का कि यार अब्बा जान पूछेंगे कि यार इतने नंबर क्यों आए हैं, इतने क्यों नहीं आए, राइट. तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी तो हमारे फादर के पास जाके देनी है. अब उसमें देखें कि यार कोई स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे हैव दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार कल को जाके मैंने जवाब देना है और मेरी बेइज्जती होगी, तो वो चीज़ को बड़ा सीरियस लेता है. कुछ होते हैं थोड़े चिल होते हैं कि यार चलो ठीक है, पूछताछ हो भी जाएगी, 2 बातें सुन लेंगे, विल लेट इट गो. अब क्योंकि यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, राइट. अब अल्टीमेटली तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे मुआशरे में देखा जाए तो यार एवरी फादर वांट्स कि यार मेरा बच्चा A-स्टार स्टूडेंट्स हो, 90% ले और मतलब क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो. बट ऑब्वियसली मतलब एक क्लास में सारे टॉपर्स तो नहीं हो सकते. सम स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट. सो वो जो फादर फिगर है या मेंटोर है, उसको अपने सब्जेक्ट को जज कैसे करना चाहिए, उसका भी कोई क्राइटेरिया है यहाँ पर. इट्स ऑन देयर ओन विम, राइट. देखें, जो भी फादर फिगर या हम जो कोच होता है भी, वो आप किसी भी शक्ल में, हम कोच का नाम ले लेते हैं, वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं. अब आप उसको फादर ले लें, टीचर ले लें, या बॉस ले लें, या कुछ भी ले लें. जो कोच होता है ना, ही नेवर टेल्स यू, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ही नेवर टेल्स यू दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. नेवर. And on the contrary, this is what is happening, even especially in the parenting. You know, the father is telling the son that this is what I want you to do. Now, what happens is कि when you say this is what I want you to do, or this is what I think you should do, मेरे अंदर sense of ownership नहीं आएगी as a subject. मैं कभी भी उसको अपना समझ के I will never give my best and I'll never shine in that particular field, because there will be a sense in my subconscious that I didn't choose to do this thing. I'm doing it for somebody else. बेशक out of respect, out of love, मैं उसको कर तो ज़रूर रहूँगा, but I will never be able to bring my 100% to that particular thing just because I'll have this in my subconscious कि मेरी complete ownership ये नहीं है, ये मेरा खुद का क्रिएशन नहीं है, मैंने खुद कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ, राइट. सो अब ऑन दी अदर हैंड जो कोच भी होता है वो भी आउट ऑफ लव वो कहता है बस जल्दी जल्दी मुकाऊं और मैं बताऊं कि दिस इज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू, बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, मैंने कोई वक्त गुजारा होता है. अब मैं उन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बेसिस पे मैं जल्दी से बता देता हूँ अपने उस कोची को या अपने उस सब्जेक्ट को कि मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए, मेरा तजर्बा है, यू नो, थ्रू माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है मुझे, अब मैं टाइम बचा रहा हूँ अपना भी, क्योंकि कोचिंग बड़ा मुश्किल काम है. कोचिंग ये है कि आप ये दिमाग में फ़िलॉसफी रखें कि उसको सबसे बेहतर पता है जो मेरा सब्जेक्ट है कि व्हाट इज़ राइट फॉर हिम और हर. ही नोस और शी नोस. मैंने उसके अंदर से निकलवाना है, उसको रियलाइज़ करवाना है कि दिस इज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू. मैं सिर्फ उसको हैंड होल्ड कर सकता हूँ उस जर्नी के अंदर. मुझे उसको रास्ता नहीं दिखाना, रास्ता उसको पता है. मैंने सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को हटा के रास्ते की क्लैरिटी करनी है उसके लिए. दैट इज़ व्हाट माई जॉब इज़. सिर्फ वालिदैन ख़ास तौर पे अगर बच्चे को ये कहना कि यार डोंट वरी आई एम हेयर, यू नो, रिलैक्स, जो भी होगी देखी जाएगी, हाँ, तो वो बच्चे को इतनी ऑनरशिप मिल जाएगी और वो इतना इंस्पायर होगा अपने पेरेंट्स से कि यार आई हैव समबडी ऑन माई बैक. एंड नाउ
मैं मजबूरन मैं उनका फेस रखने के लिए दिल से आई गिव ऑल माई बेस्ट टू प्रूव टू माई फादर, टू माई whoever I consider as a father figure, कि यार see you believed in me and I did this, I produced this and I'll give my 100%. मैं कहीं से भी वो energy निकाल के I'll give all my best. But on the other hand, if you will tell me, even for example, if I'm doing something wrong, let's take that example. For example, I do drugs and I got caught. और मुझे जी आके मेरे वाले साहब ने कहा कि पहले तो थप्पड़ मारा मुंह पे और फिर मुझे कहा कि नेवर डू इट अगेन, आई डोंट वांट यू टू डू ड्रग्स. मेरा नाम बदनाम कर दिया तुमने, मेरी इज्जत, ऑल अबाउट माई सेल्फ बीइंग फादर. तो मुझे बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ सब्जेक्ट, आई विल नेवर हैड दिस रियलाइजेशन के, और मुझे यार रियलाइज़ ही नहीं करवाया गया कि वो ड्रग्स मेरे लिए गलत हैं या क्यों मेरे लिए गलत है. मुझे सिर्फ ये कम्युनिकेट किया गया कि तूने मेरी इज़्ज़त ख़राब की और मैं चाहता हूँ कि तुझे ये नहीं करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. सो यू एज अ फादर डिडंट मेड मी रियलाइज कि हाउ रॉन्ग इट इज़ एंड हाउ रॉन्ग आई एम डूइंग इट टू माई सेल्फ. इट वॉज अबाउट मी, नॉट अबाउट यू. सो इवन देन वो आप उसको छुड़ा के दिखाएं. आप छोटे से बच्चे को, बल्कि जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, वो अगर वो पेंसिल लेके दीवार पे कुछ बना रहा है ना, ड्राइंग कर रहा है, आप उसे जाके अश इडियट व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू इट अगेन, वो कहेगा ऐसी की तैसी. वो पहले तो गुस्से से आंखें फाड़ के देखेगा अपने बाप को कि मतलब मेरी से उसकी भी सेल्फ इस्टीम होती है. पहले तो उसकी सेल्फ इस्टीम हर्ट हुई है, वो गुस्से से देखेगा 2 मिनट और फिर दूसरे दिन वो उससे ज़्यादा बड़ा कुछ ड्रॉ करेगा दीवार के ऊपर. बिकॉज उसकी सेल्फ इस्टीम नहीं चाहती कि उसको आप डायरेक्टली पॉइंट करके बताएंगे आई वॉन्ट यू टू डू दिस. इंस्टेड यू एम्पावर मी, यू टेल मी दैट यू आर अ बिग बॉय नाउ, एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस, आई वॉन्ट यू टू टेक ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ. सर अब थोड़ा सा हम आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कैपिटलिज्म की बात करना चाहूँगा. आजकल की जेन जी की बात कर लेते हैं, पर हमारी मिलेनियल्स की भी बात कर लेते हैं. अंदर ही अंदर से ना वी आर वेरी एंटी कैपिटलिस्ट ना, कि यार ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसके अंदर मतलब आप बंदा घुस जाता है तो यू हैव टू बिकम अ सब्जेक्ट टू अ हायरार्की, और मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी और को पैसे कमा के दे रहे होते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि हम कभी दिल लगा के काम कर ही नहीं पाते. एक बंदा जिसके अंदर ये फैक्टर आ जाता है, जैसे एक स्टूडेंट जिसके अंदर कोई फैक्टर आ जाता है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लूज़ कर जाता है, मतलब कि मैं अपना सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लूज़ कर जाता है. उसी तरह एक एम्प्लॉई भी जब उसके अंदर ये वाला एक थॉट प्रोसेस चल रहा होगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी लूज़ करेगा, अपना वो जो पोटेंशियल होगा उसको भी लूज़ करेगा, अपना प्रमोशंस की जो वो उसकी पॉसिबिलिटी बनती थी उसको लूज़ करेगा. क्योंकि वही बात है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है वो उसको अंदर ही अंदर वो उसको कोस रहा है कि यार ये तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, एक आइडियोलॉजी ऐसी बनी हुई है. डू यू थिंक यार नेचुरली कैपिटलिज्म के अलावा भी कोई सिस्टम है जो चल सकता है जिसके अंदर सारे एक जैसे हों, या हायरार्की का होना सोसाइटी के अंदर ज़रूरी है? ऑलराइट, सो सी वैसे तो काफ़ी सिस्टम्स हैं, कैपिटलिज्म भी है और कम्युनिज्म भी है और ढेरों डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं. बट एज एन एम्प्लॉई हु इज़ वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट समथिंग कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ और किसी को पैसे कमा के दे रहा हूँ, because it's all about perspective, the way you see things. If I see capitalism as something really bad, something वो devil की शक्ल मेरे दिमाग में आती है capitalism को सोच के, तो फिर मेरे अंदर मैं फिर उसको I'll never be comfortable to be part of that system, because I see it really bad, I see it very negative. और वही बंदा जब कल को इन्वेस्टमेंट करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो he's gonna be okay with it. यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है, मैंने 4 बंदे रखे हैं मेरे लिए काम कर रहे हैं, now it's fine. Yeah. So it's all about the way you see that system. But उसको अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो आप ये देखें कि इसी सिस्टम ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, कितने लोगों के घर इसी सिस्टम की वजह से चलते हैं. ऑब्वियसली हायरार्की का सिस्टम इसलिए फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि टू अप्रिशिएट. So it is again it is the way you see it. So if 4 people are working और एक बंदा ज़्यादा जान मारता है तो उसको हम elevate अगर कर रहे हैं तो that means that he is getting appreciation for going an extra mile among
his or her peers. Yeah. So that's how उसको फिर एक sense of career path भी नज़र आता है. उसको नज़र आता है कि I'll reach somewhere. There is a pathway that is created for me, and I can do this and this to get to this level, and then this and this to get to that level. On the other hand, if I see something, that they're पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं या पता नहीं कोई मैं किसी गलत सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू गिव माई बेस्ट. बट अगेन आपको अगर आप वैल्यूएबल हैं तो आपको वैल्यू के एवज, ये कुदरत का कानून है कि अगर आप वैल्यूएबल हैं, आप मार्केट को वैल्यू देते हैं, तो उसके एवज मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर करती है. वो किसी भी तरीके में, मॉनेटरी रिवॉर्ड या टाइटल्स का रिवॉर्ड या इज़्ज़त का रिवॉर्ड या बीइंग फेमस का रिवॉर्ड. आप अगर वैल्यूएबल हैं तो यू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट. आप किसी भी सिस्टम का हिस्सा हैं. बिल्कुल. तो वो आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिस्टम्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल कैपिटलिज्म, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. अल्टीमेटली अगर आप देखें ना, कम्युनिज्म है या फिर कोई भी सिस्टम उठा के देख लें, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट वैसे ही आजकल नहीं, मतलब जो 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया, तो वो एक पॉइजन सा बन जाता है क्योंकि वो आर्गुमेंट्स बड़े लॉजिकल लगते हैं ऑब्वियसली. लेकिन देखा जाए तो यार हायरार्किकल सिस्टम के बगैर सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना. एक अनार्की क्रिएट हो जाएगी जब पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, कोई ऑर्डर करने वाला ही नहीं है, तो सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन ही नहीं होगा, कैओस होगी, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे. ट्रू. तो आई थिंक हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जानवरों की एग्जांपल आप ले लें, मतलब जंगल के अंदर भी मतलब टेरिटरीज डिफाइंड होती हैं, जो क्लैन्स होते हैं, उसका एक सुपीरियर होता है, एक हेड होता है, और उसके अंदर नीचे उसके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो कमिंग टू दिस एग्जांपल, कॉर्पोरेट की एग्जांपल लेते हुए, डू यू थिंक यार पीपल यूजुअली आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज एक तो ये कि सिस्टम को वो ओन नहीं कर रहे होते, एंड इफ येस देन डू यू थिंक दोज पीपल आल्सो नीड कोचिंग in a way? Right. No, coaching, to we all need coaching. It's very essential. Be it for... How do a person know that I need coaching? मतलब मैं corporate का हिस्सा हूँ. How do I know कि यार I need a coach, I need a mentor? All right. So coaching, it depends that what area do you want coaching in? Because हर area के different mentors या coaches होते हैं. For example, एक life coach होता है, एक your therapist can be your coach. If you play sports, there can be a coach for that particular part of your life. If you are अगर आप मैरिड हैं तो आप वहाँ पे कोई आप अपनी relationship therapy के लिए you can have a coach. So the first question that I need to ask to myself is that which area of my life I want to better. कौन से एरिया पे मैं काम करना चाहता हूँ. जिस भी एरिया पे मैं काम करना चाहता हूँ, अगर मैं उसमें थोड़ी सी एक्सेलरेशन लाना चाहता हूँ उसकी बेहतरी में, तो आई विल फाइंड अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. With the help of that person, he'll hold my hand and he'll walk me through that journey. So the question will be कि कौन से एरिया को मैं बेहतर करना चाहता हूँ. तो then I'll find a particular expert related to that. आई थिंक वही जो बाहर के मुल्कों में कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज मैं नेचुरली हर चीज़ को बैक टू एजुकेशन सिस्टम लेके जाता हूँ. तो उधर जो कंसल्टेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि बैठे होते हैं फुल टाइम, और कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कैरियर काउंसलर्स भी होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं. बिल्कुल, दे हैव ऑल दीज पीपल इन देयर स्कूल्स. और अब ये देखें ना कि उन सोसाइटीज़ के अंदर वेयर देयर आर दीज पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग, उनके टीन एज से ही वो उनको पता है कि यार इस तरह का एक बंदा है, उसका एक रोल है, उसके पास मैं जाऊँगा, वो मेरी प्रॉब्लम को सुनेगा और मेरे उसको फिगर आउट करने में मेरी हेल्प करेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम को समझना, उसको गहराई तक जाना इज़ द सोल्यूशन, राइट. अब हमारे पास नहीं पता हमें कि यार कोई बंदे होते हैं जिनके पास हम जा सकते हैं. और सबसे पहली बात वही बात आ जाती है कि यार वी डो नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि यार मेरे अंदर कोई कमी है. हम कहते हैं कि यार बाहर ही कोई वजह है, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम आ रहा है, लेकिन यह है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है. It takes a lot of humility to accept that I need to learn something. Lots of humility. I think a lot of training as well, ना, क्योंकि बिगिनिंग से वो उसको सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे, तो पीपल आर गोना नो यार इस तरह सिर्फ कोच भी होते हैं, ट्रेनर्स भी होते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं, थेरेपिस्ट भी होते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर.
Sir, second thing that I wanted to discuss with you was breaking from bad habits. क्योंकि हमें यूजुअली बड़ी एडिक्शंस हो जाती हैं, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन, सिगरेट की एडिक्शन, एनी एडिक्शन यू नेम इट, देयर आर सो मेनी आउट देयर. उसके अंदर यूजुअली most of the people, what they're doing is they're trying to read self-help books. They're trying to get rid of these addictions on their own. वो power of habit वाली किताबें पढ़ लेंगे या फिर इस तरह की, which do work for some people. लेकिन for some people वो प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा होता, या फिर जिसने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा, किसी को सुना नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट. तो इफ़ यू ब्रेक इट डाउन, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स? Alright. So, talking about bad habits. So, first I need to understand कि habits की formation कैसे होती है. जब तक मुझे पता नहीं है habits form कैसे होती है, मैं इसको break करके नई habit form नहीं कर सकता. So, habits का अगर हम loop understand करें तो habits की loop ये होती है कि first आप कोई चीज़, कोई stimulus होता है, उस स्टिमुलस से कोई ट्रिगर क्रिएट होता है और उस ट्रिगर से कोई एक्शन होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिगरेट की बात करूँगा तो हैबिट का ये फिनोमिना है कि मैं जा रहा हूँ वैसे ही, तो अगर मैं स्मोकर हूँ और मेरी हैबिट फॉर्म हुई हुई है ऑलरेडी, तो वो उससे पीछे फिर एक और फिनोमिना है कि वो हैबिट फॉर्म जब हुई थी तो वो कैसे हुई थी. वो अगेन वो उसके पीछे ये होता है कि आपकी जो सोचें होती हैं वो आपके अंदर फीलिंग क्रिएट करती हैं, और वो जो फीलिंग्स हैं वो हैबिट क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ लूजर, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव फीलिंग इन यू, एंड दोज नेगेटिव फीलिंग्स देन विल क्रिएट नेगेटिव बिहेवियर्स. यूल गो टू ड्रग्स, यूल गो टू अदर बैड थिंग्स. नाउ कम बैक टू द हैबिट. फॉर एग्जाम्पल यू आर इन एन हैबिट, जो आपने सोचा, फील हुआ, उसके बाद हैबिट फॉर्म होगी. अब वो हैबिट का जो लूप है वो ये है कि मैं कहीं कोई स्टिमुलस देखता हूँ तो मेरे अंदर ट्रिगर जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन ऑफिस से निकला हूँ बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने कैब मंगवाई हुई है और मेरे साथ एक बंदा आगे खड़ा होता है और वो सिगरेट का पैक निकालता है और सिगरेट लाइट करता है. द मोमेंट मैं वो सिगरेट का पैक देखूंगा और उसको लाइट करते हुए देखूंगा, मेरे अंदर ट्रिगर क्रिएट होगा. अब वो जो ट्रिगर है वो ट्रिगर सेटिस्फेक्शन मांग रहा है, और वो सेटिस्फेक्शन तब होगी जब मैं उसके बाद वाला एक्शन करूँगा जो कि स्मोक करना है. तो ये एक पूरा लूप है. अब मुझे अगर ये लूप समझ आ जाए, मेरी जो भी हैबिट है, मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि उसके स्टिमुलस क्या क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरी हैबिट है मैं डिजिटल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी एक बैड हैबिट बन चुकी है, तो मैं ये देखूँ कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, या कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जो मुझे ट्रिगर करता है. राइट. अगर मुझे पता लग जाए कि ये वो स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल कोई एक मेरा दोस्त है या कोई मेरा एक ख़ास वक्त है जो मैं जॉब से आता हूँ, वापस घर में लेटता हूँ, जो मैं फ्री टाइम, वो मुझे जो जैसे मैं फ्री होता हूँ तो वो मेरा एक स्टिमुलस है, उधर से मेरा ट्रिगर होता है. तो मैं उस पहले तो कोशिश करूँ उसको एरेडिकेट करने की, या उसको अवॉइड करने की, या उससे किनारा कशी, या उससे ख़ुद को दूर करने की, ताकि वो ट्रिगर क्रिएट ना हो. लेकिन अगर फिर भी मैं ख़ुद को बहुत आइसोलेट नहीं कर सकता उस स्टिमुलस से, तो मुझे ये देखना है कि मैं अगर ट्रिगर आया है तो अब मैंने सेटिस्फाई कैसे करना है उसको. उसके लिए आई नीड टू फॉर्म अदर हैबिट्स विच आर गुड टू काउंटर दीज बैड हैबिट्स. क्योंकि वैसे तो मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं सिर्फ कहूँ ना कि मैंने कंट्रोल करना है, तो देन आई गो क्रेजी थ्रू माई विल पावर. इफ अगर मैं सोचूँ कि आई नीड टू चेंज दिस हैबिट, और मैं आई एम वेरी पावरफुल, आई डू इट, यू विल ब्रेक डाउन. Because you need something. Those nervous patterns, जो neural patterns आपके दिमाग में बने हुए हैं, और वो उनको आदत है उस habit की, जो उसे नहीं मिलती तो वो they start to go crazy. So for that you need to give them something that is somehow equivalent to the satisfaction that you used to get doing that process. नाउ दैट कुड बी, अब इसको आप कहीं पे भी रेप्लिकेट करें, लेकिन फिनोमिना सेम है. सो मुझे कोई ऐसी हैबिट ढूंढनी है जो मुझे वही सेटिस्फेक्शन दे जो मुझे वो बैड हैबिट देती है. और फिर जितना मैं इसमें इन्वॉल्व होता रहूँगा गुड हैबिट के अंदर, उतना मैं उसको भूल के वो जो मेरे पुराने न्यूरल पैटर्न्स बने हुए थे वो उतने आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है. इट टेक्स अ लॉट 6 months to create a new neural pattern. तो 6 months के लिए I need to find something else. Probably personal development gives you a lot of good feeling. Do you know that? It gives you a lot of satisfaction, and it has a dopamine effect when you are working on yourself, when you are reading a book, or when you are learning a new skill. Even when you are going to gym. Going to gym, going for कोई नई स्किल सीखने के लिए आप चलेगा. आप कहते हैं मैंने हॉर्स राइडिंग में जो है वो
एनरोल कर लिया, मैं वो सीखूंगा, या मैं जो हूँ वो स्विमिंग मुझे नहीं आती तो मैं स्विमिंग सीखता हूँ. कोई नई स्किल अगर आप सीखते हैं, आप सेल्फ डेवलपमेट करते हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, गिव्स यू अ डोपामाइन इफेक्ट. अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए 6 महीने के लिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू reconstruct your neural patterns and get rid of that And I bad think habit. people should explore ना कि यार what skills are out there, क्योंकि usually कुछ लोग होते हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक नहीं होता, लेकिन since people are there in their society, in their circle are talking about books and they're reading books, तो उनको कुछ लोगों को होता है कि यार अगर मैंने कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पहला कदम लेना है तो इधर इट इज़ बुक्स और इधर इट इज़ जिम, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ तो किताबें पढ़ रहे हैं, जिम जा रहे हैं. लेकिन आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पर्सनल डेवलपमेंट पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्लोर मोर, कि यार ज़रूरी नहीं है कि जो साथ वाले लोग कर रहे हैं मैं वही करूँ. एक्सप्लोर आउट देयर. आप बेशक इंटरनेट पे कोई स्किल सीख लें, कोई कोर्स उठा लें, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, अमेजोन सीख लें, एनीथिंग. मतलब आप बेसिकली अपनी एक स्किल बना रहे होंगे ना, तो पर्सनल डेवलपमेंट वो भी हो रही होगी कि आप अपने स्किल सेट के अंदर कोई अपने आर्सनल के अंदर एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं. दैट्स वन थिंग. अच्छा, व्हाइल यू वर टॉकिंग मेरा जहन जा रहा था बिहेवियर के ऊपर ना, कि इंसान का बिहेवियरल चेंज आता है जब भी उसको कोई रियलाइजेशन होती है. तो कैन यू ब्रेक रियलाइजेशन डाउन फॉर मी कि यार एक रियलाइजेशन होती क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली एक रियलाइजेशन की एंड के ऊपर ही एक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है. Right. So realization is knowing से जो अगला स्टेज है, क्योंकि knowing की हद तक तो हमें काफ़ी कुछ पता है. नॉलेज आ गया. You know, we do a lot of stuff in our life which we know is not right. You know, और काफ़ी चीज़ें हम नहीं करते जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए. तो नॉलेज की हद तक तो हमें पता होता है चीज़ों का, लेकिन रियलाइजेशन इज अ मोमेंट व्हेन यू गो आहा, यू नो, माय गॉड, आई नीड टू डू दिस. यू नो, फॉर एग्जांपल, आई नो दैट आई नीड टू गो टू जिम, बट आई नेवर वेंट टू जिम. बट वन डे something happens that I get this realization that, oh my god, you know, I need to do it. Do you think it is something at your subconscious level, या फिर I think subconscious से ही Subconscious पे तो बाद में आएगा. अच्छा. It needs to have a very strong conscious stimulation for that to happen. बिल्कुल. A conscious stimulation. Consciously आप कहते हैं कि oh my god, मतलब I need to stop this. Enough is enough. Now that can either happen कि आपको कोई एक्सटर्नल कुदरत की तरफ से कोई चमाटा लगा है, कोई ऐसा इवेंट हो गया आपकी ज़िंदगी में, इतना मेजर इवेंट हुआ है कि उसके बाद आपको लगे कि आई नीड टू डू दिस. लॉट ऑफ टाइम्स कहीं जो फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉट ऑफ गाड़ी तेज चलाने की आदत है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसे पता लगता है कि यार आई नीड टू स्टॉप दिस. या किसी के फादर की डेथ हो गई है बड़ी यंग एज में, और उसने आज तक बिजनेस का कुछ भी नहीं पढ़ा था ना कुछ उसको इंटरेस्ट लिया था. अब एकदम से कितना बड़ा इवेंट हुआ, उसको रियलाइजेशन हुई है कि नाउ आई नीड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. या एक बंदे की शादी होती है और वो उसको पहला उसका बच्चा होता है, तो उसको एकदम से रियलाइजेशन होती है कि नाउ आई एम अ फादर, ओ माय गॉड, you know, I need to stop doing this or I need to start doing this. तो either ये तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, कि यार कुदरत के निज़ाम में ऐसे भी चेंजेस आ गई कि आपको रियलाइजेशन होगी. डू यू थिंक इंटरनली भी इंट्रोस्पेक्ट करते हुए भी इट इज़ पॉसिबल? It is very much possible. अच्छा. We are very powerful beings. We have all the tools within ourselves that are required to bring a massive change in our personalities. It can happen in a blink of an eye. एक चुटकी में हो सकता है, क्योंकि मैं आई वर्क ऑन माइंडसेट चेंजेस. आई वर्क ऑन पीपल जिनके सेल्फ इस्टीम के इश्यूज होते हैं, जिनके कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, और वो उसको पीछे से जाके ना अपने पास के साथ रिलेट करते हैं. अच्छा, इतने 30 साल पहले ये हुआ था. तो मेरा ये मानना है, और NLP के जो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उनका भी ये मानना था कि आप वो कहते थे मैं एक सेशन के अंदर लोगों के फोबिया ख़त्म कर सकता हूँ, एक सेशन के अंदर. So humans are very powerful. We can, if we do it very, हम बहुत शिद्दत के साथ अगर वो करना चाहें तो we can do it overnight. I mean, एक बड़ी मज़े की चीज़ क्लिक हुई मेरी, एकदम से चुटकी में निकल गई. NLP का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी रेलिवेंट टू द रियलाइजेशन वाली बात. NLP थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर आप लैंग्वेज के थ्रू अपने आप बेसिकली देखो ना, हमारे नोशंस बने होते हैं, हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्शंस बने होते हैं,
और जो शुरू में हमारी बहुत पहले बात हो रही थी कि यार एक सर्टेन एज आती है, प्यूबर्टी हिट करता है बंदा, एंड सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग यार यू आर सेंटर ऑफ द अटेंशन, मतलब सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं, एंड द वे यू वॉकिंग इन योर स्कूल, सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, सारे बच्चों की आपकी नज़र है कि यार इसकी वॉकिंग क्या है, ये पहन के क्या है। दैट इज़ नॉट द रियल केस, लेकिन वो जब नया नया एक आंख खुलती है ना आपकी सबकॉन्शियस के अंदर कि यू आर बीइंग वॉच्ड एंड यू आर बीइंग जज्ड, देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो वही बात आ जाती है कि यार आपकी विद टाइम कॉन्सेप्शंस बनती हैं एंड यू थिंक यू आर राइट, Yeah. और वो कंसेप्शन जब टूटती है थ्रू न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बेशक एक टेक्निक है जो जिसके अंदर एक थर्ड पार्टी या सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है, लेकिन आई थिंक जब इंट्रोस्पेक्ट बंदा कर रहा होता है, जब खुद सोच विचार कर रहा होता है या फिर जर्नलिंग कर रहा होता है, और वो किसी रियलाइजेशन पे पहुंचता है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ना, बिकॉज Yeah. अभी मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि यार जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो आवाज़ है वो एक मोनोलॉग नहीं है बल्कि एक डायलॉग है। Yeah. वो हमेशा वो एक आवाज़ हमें जो हम एक आवाज़ परसीव कर रहे थे, बेसिकली देयर आर टू वॉइसेस Yeah. हैविंग अ डायलॉग विद ईच अदर, और जिसके रिजल्ट में आपको कोई बातें पता लग रही होती हैं। सो आई थिंक इफ़ वी टेक दैट डायलॉग इन आवर माइंड वेरी सीरियसली, Yeah. वही हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे होंगे, अपने मेंटल लेवल पे कर रहे होंगे, या फिर अगर जर्नलिंग कर रहे हैं तो उस लेवल पे, तो वी कैन हैव रियलाइजेशंस। और रियलाइजेशन ये नहीं है कि यार आप बस बैठ जोर को क्या मैं आधा घंटा लगाऊंगा रियलाइजेशन आ जाएगी, इट कैन कम एनी टाइम ना। Yeah. यू डोंट नो वेयर यू गोइंग रॉन्ग, किधर Yeah. आपका जो नोशन है वो थोड़ा इलॉजिकल बना हुआ है, किधर आप की जो सोच है वो थोड़ी गलत है। सो व्हेन यू रीच दैट पॉइंट जिधर आप एक गलत से नुक्ते को सही करते हो और फिर एकदम से वो पूरी पजल सॉल्व हो जाती है, एंड देन यू हैव अ रियलाइजेशन कि यार दिस इज द केस। Yeah. The more um, you open yourself Yeah. to different perspectives, the better is the chance that you'll have those epiphanies and those realizations. अब सुकरात की realization देखिए कितनी खूबसूरत है कि a person who was known as the wisest man of his age, after knowing so much, Yeah. he came to a realization that I know one thing, that I know nothing. Wow. Yeah. मतलब the more he knew, the more he realized कि यार I know nothing. There is so much out there. Yeah. You know, the more he knew, the more he figured out things, the more he realized कि oh my god, there is so much out there. There's an ocean of knowledge and things that I probably, if I spend my whole life, I won't be able to know. Yeah. So the more you open yourself into accommodating other perspectives, the more you get realization about things. Yeah. Yeah. So Socrates would usually go to people ना, Yeah. जिनको लगता था कि उनको बहुत कुछ आता है, और सक़रात को ही शुरू में ही सोचता था कि यार मुझे कुछ नहीं आता, तो ही वुड गो टू पीपल हु वुड बिलीव कि यार हमें पता है, मैं काजी हूँ, मैं जज हूँ, मुझे पता है जस्टिस होता क्या है। तो वो पूछता था कि अच्छा जस्टिस क्या होता है, जैसे मैं आपसे बारी बारी पूछ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। Yeah. तो ही वुड गिव हिज डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, और फिर उसके अंदर फिर वो और क्वेश्चंस करता जाता था। ही वुड टेक दैट पर्सन टू अ पॉइंट जिधर उसके जवाब के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती थी कि यार तूने पहले तो ये बात की थी, अभी तू ये एक बात कर रहा है, तो इसके अंदर तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। सो व्हेन ही वुड रीच अ कॉन्ट्रडिक्शन, दूसरे बंदे को कॉन्ट्रडिक्शन पे लेके जाता था, तो वो कहता था कि ठीक है बस होगी, नाउ टू द नेक्स्ट पर्सन। तो अल्टीमेटली जो लोग क्लेम करते थे कि हमें पता है कुछ, वो बारी बारी सबके पास गया और उसने अंदाज़ा लगाया कि यार एवरीबडी क्लेम्स टू नो समथिंग बट दे डोंट नो एनीथिंग। तो दैट्स व्हाई ही सेड कि यार आई एम द वाइजेस्ट मैन इन एथेंस, क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि यार एक ऑरेकल थी, उसने कहा था कि सुकरात सबसे वाइज बनता है पूरे एथेंस में, तो वो उसको डिसप्रूव करने की कोशिश में था पूरी ज़िंदगी। तो अल्टीमेटली उसने कहा कि ठीक है आई एम वाइजेस्ट because I know that I know nothing, whereas people claim to know things yet they don't know anything. खैर वो तो आ गई। एक फाइनल डिस्कशन में लेके जाऊंगा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर ना। हम फिलोसफी में थे, हमने पढ़ा एग्जिस्टेंशियल स्टेट्स के बारे में। एंड आई थिंक फॉर अ यंग जनरेशन एंड फॉर यंग पीपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो 20 से 25-26 की बीच की एज होती है ना, इट इज़ कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल एज। और द रीज़न आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज़ बिकॉज जब हम हैबिट की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि यार हैबिट की जो एसोसिएशन है वो यूजुअली किसी फीलिंग के साथ होती है, किसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ होती है। एंड देयर आर फ्यू स्टेट ऑफ माइंड दैट आर वेरी कॉमन इन एग्जिस्टेंशियल स्टेट ना, एग्जिस्टेंशियल ये जो एज है। एंड दोज फीलिंग्स आर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, बोर्डम एंड नाइलिज्म।
डिप्रेशन एग्जाइटी का सबको पता है. डिप्रेशन आप पिछली जो इंसिडेंट हो चुके हैं उनको लेके आप स्ट्रेस हो रहे हैं, या फिर अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट कर रहे हो. एंगजाइटी इज़ अबाउट द फ्यूचर कि कल को क्या होगा. लोनलीनेस यू नो कि यार इट इज़ वेरी कॉमन. आई एम श्योर यू वेंट थ्रू इट. I went through it. Everybody at this mid 20s they go through it. Boredom is very common. हर कोई बंदा एक टाइम पे बोर होता है. एंड नाइलिज्म कि यार पर्पस क्या है ज़िंदगी का, मकसद क्या है. जो एंगजाइटी डिप्रेशन, चलो साइकोलॉजिस्ट होंगे बात करेंगे. आई थिंक वी आर एलिजिबल टू टॉक अबाउट बोर्डम, उसके बाद लोनलीनेस और उसके बाद नाइलिज्म कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए बंदे का. सो डू यू थिंक यार एक लोनली पर्सन when he would have this feeling of loneliness, he would go to a certain habit? All right. So see, now what is happening to this at this time of age? What is happening actually? पहले मैं मुझे स्कूल में डाल दिया, ठीक है. स्कूल की पक्की रूटीन बनी हुई थी. मैं सुबह जाता था स्कूल में. सुबह भी मुझे अम्मा तैयार करती थी, नाश्ता खिलाती थी, बस आती थी, उस पर बैठता था, स्कूल जाता था, स्कूल टीचर पढ़ाते थे, ख़ास यूनिफॉर्म होता था, किताबें मुझे दे देते थे हर साल नई. हर साल नया करिकुलम होता था, असम्बली होती थी, उसके बाद स्पोर्ट्स का टाइम फिक्स होता था, उसके बाद मैंने वापस आना है, उसके बाद कारी साहब लगवाए होते थे, फिर ट्यूशन जाना होता था. मेरी ज़िंदगी हमेशा से प्लान थी. मैंने इसमें कुछ भी कॉन्शियसली नहीं अपने लिए प्लान किया था. मुझे फिर उसके बाद कॉलेज जाना था. कॉलेज का एक प्रॉपर पूरा निज़ाम था, मैंने ये करना है, मेरी पूरा टाइम टेबल सेट था, मेरे माँ बाप ने सेट किया था, सिस्टम ने सेट किया हुआ था. फिर मुझे यूनिवर्सिटी में फेंक दिया. यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम, यूनिवर्सिटी के अंदर क्विज़ेस होंगे, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा. अब अचानक से मुझे इन्होंने यूनिवर्सिटी से पास कर दिया और ऐसे ही फेंक दिया, कहा जाओ नाउ लिव योर लाइफ. ना आई गो क्रेजी कि ओह माय गॉड शिट मैन, मतलब अब मैं क्या करूं, मतलब सुबह उठ के किधर जाऊं. क्योंकि मैं तो पिछले पूरे ज़िंदगी सुबह उठ के एक क्लास में बैठता रहा हूँ और मेरा एक पूरा टाइम टेबल सेट रहा है. एक सिस्टम में चलता रहा हूँ मैं. एक सिस्टम में मैं चलता रहा. अब मुझे सिस्टम ने कहा कि नाउ यू आर ऑन योर ओन. So I'll definitely have this sense of loneliness. Why? Because everybody's of मेरे जो peer age है उसमें हर कोई अब इस तरह से फेंक दिया गया. वो सारे ग्रुप से निकल गए ना, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक आपके मतलब एजुकेशन के एंड तक आपका एक ग्रुप रहा. सही क्लास रही, वो एक बेसिकली ग्रुप ही होता था. एंड ऑल दोज पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन. असाइनमेंट्स आ रही हैं, पीपल आर गोना हेल्प यू आउट. आप किसी से सीख करें, कुछ भी आ रहा है, आप ग्रुप में रहते थे हमेशा. शुगल होता था, मेला होता था, हंसते थे, कोई टेंशन नहीं थी. आपको लगता था दिस इज व्हाट इट इज. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल एज आई थिंक आपकी जो फैमिली है, इट इज़ नॉट द ग्रुप दैट वी नीड. मतलब फैमिली ने तो अपना रोल्स बाहर दे दिया ना, आउटसोर्स कर दिया एजुकेशन को, कि देखो ये बच्चा है, इसको शुरू से ही आपने संभालना है, यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप. क्योंकि हमारा जो ग्रुप के अंदर जो रोल्स हैं दे हैव चेंज्ड, राइट. तो वो आउटसाइड फैमिली यू ऑलवेज सीक फॉर अ ग्रुप. और वो जब ख़त्म होता है आपका ग्रुप, तो डेफिनेटली इवन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट भी हैं एंड इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, इफ़ यू फील लाइक यार मेरे कोई दोस्त नहीं है, और मैं इफ़ यू डोंट गो एंड आस्क फॉर हेल्प, या फिर किसी को आप जाके अप्रोच ही नहीं करते, तो definitely you're gonna have that factor of loneliness during your education as well. Yeah, basically we are social animals. We need human beings. We cannot live in isolation. हम रह ही नहीं सकते isolation में. हम बने ही नहीं है. हमारा सॉफ्टवेयर ही और तरह का. तो अब जब मैं लोनली फील करता हूँ उस टाइम पे, तो डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स दैट कम टू माई माइंड, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, दैट लीड्स टू एंटरिंग इनटू बैड हैबिट्स, दैट लीड्स टू बैड चॉइसेस. बिकॉज आप जब डेस्परेशन में होते हैं ना, तो आप फिर राइट चॉइसेस नहीं लेते. आप आउट ऑफ डेस्परेशन ही एक्शन कर रहे होते हैं. ऊपर से मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो चुकी होती हैं कि नाउ ही हैज़ ग्रेजुएटेड, नाउ ही विल डू समथिंग इन लाइफ, यू नो. बट हियर आई एम, यू नो, हु हैव नेवर हैड एनी कैरियर काउंसलिंग, हु हैव नेवर हैड एनी मेंटर, हु हैव नेवर हैड any vision about my life, and now I have to decide something for myself. And to find a job and all those things, and there is uncertainty in front of me. Now whenever there is uncertainty की ख़ास बात यह है कि that leads to anxiety. मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं इस कमरे में फॉर एग्जांपल कभी नहीं आया इससे पहले, और आप मुझे कहें नुमान तुमने एक कमरे में जाना है, अंदर फुल अंधेरा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ जानदार चीज़ें भी हों अंदर, तो लेकिन यू विल फिगर इट आउट, तुमने अंदर जाना है. अब नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ behind that door or in that room. मुझे नहीं पता क्या होगा अंदर. तो definitely because of that uncertainty I'll have a little anxiety in me.
लिटिल टेंशन इन मी, क्योंकि मुझे Curiosity भी कह सकते हैं अगर उसको पॉजिटिवली वो करें. या क्यूरोसिटी सिर्फ ये होगी जानने की कि अंदर है क्या, Yeah. लेकिन वो लीड करेगी एंग्जाइटी पे, क्योंकि मुझे पता नहीं अल्टीमेटली अंदर क्या है. बिल्कुल. सिमिलरली लाइफ अगर मैं ये देखूं कि अनसर्टेनिटी है ना, पता नहीं क्या होगा मेरा, Yeah. यू नो, अब वो अनसर्टेनिटी को अगर मैं, वही बात है पर्सपेक्टिव की, अगर मैं ये देखूं कि पता नहीं क्या होगा, Yeah. शिट मैन, पता नहीं होगा नहीं होगा, Yeah. तो आई डेफिनेटली एंटर इनटू द स्टेट ऑफ एंग्जाइटी. बट ऑन द अदर हैंड इन लोगों को मेरा मशवरा ये है कि the most beautiful thing about life is uncertainty. Yeah. If you take uncertainty out of life, if I'll tell you कि 25 में तुम ये हो गए, 26 में ये हो गए, 27 में ये हो गए, 28 में ये हो गए, फिर 60 में जाके तुम्हारी मौत होगी 61 पे फलां दिन तो पे, क्या फायदा जीने का? तो then there is no point of living. Yeah. And there is no excitement. Yeah. So that itself is something exciting, that there is no certain things about life. Yeah. And that is the stage where you need to do mistakes. Don't try to be very smart, and don't try to put everything in into right order. Yeah. You know, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है. बिल्कुल. That is the time to do mistakes. Try out things. Fall, experience failure, because failure बहुत ज़रूरी है to make yourself more humble Yeah. and grounded. So experience failure, experience all those ideas that are in your mind, and fail. The more you fail in this stage, the better and more equipped you will be when you will enter into 30s, early 30s. Yeah. Is it being very specific about habits? वही बात आ जाती है कि यार you have a feeling, and that feeling is going to trigger some behavior in you, and that behavior repeatedly is going to form a habit, right? Loneliness we talked about. I think boredom is also something very natural, क्योंकि दिमाग जब भी एक एज में, ज़ाहिर बात है उसके अंदर इतनी एनर्जी है और वो इतना भाग रहा है, एंड व्हेन एवर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, तो वो कहेगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ मिले. व्हेन यू लुक अराउंड, एक हम यूजुअली हमारी जो पुरानी जनरेशन होती थी, जब नया नया फेसबुक आया, इंटरनेट आया, तो दे यूज्ड टू कंप्लेन कि यार हर वक्त फ़ोन में घुसे रहते हो, मतलब आपकी अटेंशन किधर है, ध्यान किधर है. तो वो हमें एक स्टिमुलस की आदत हो गई थी बिकॉज ऑफ आर बोर्ड स्टेट ऑफ माइंड. और अभी हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वी वर टॉकिंग अर्लियर कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है, दे आर यूजिंग मोर फेसबुक देन अस. और ऊपर से हमारी जो हमसे नीचे वाली जनरेशन है, जेन जी, दे आर ऑल्सो यूजिंग मोर मोबाइल फोन्स देन अस. तो बड़ी खुशी हो रही है कि यार वी आर द मोस्ट सोशल जनरेशन एट द टाइम. लेकिन ये है कि यार हाउ डू वी डील विद बोर्डम इन अ मोर इफेक्टिव वे? बोर्डम बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, और इस पे मेरी थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है. लोग कहते हैं कि बोर्डम इज समथिंग दैट विल टेल यू whether this thing is your passion or not. If you get bored in doing something, that means that is not your passion. That is bullshit. I don't believe in it, because you cannot stay energized and energetic and, you know, jumping all over the place all the time. You know, even though you are in a field that you truly love and that you consider your passion, there will be times that you'll be bored. Because even in that profession, जब भी monotonous होती है ज़िंदगी, तो boredom is very natural. क्योंकि जब दिमाग सेम चीज़ बार बार, फॉर एग्जांपल मुझे ना बड़ा ख्वाहिश होती थी कि टाइम हो कि मैं ट्रेनिंग्स कराऊँ. तो अब जब मैं 2 हफ्ते बैक टू बैक ट्रेनिंग कराता हूँ ना, आप पूरा दिन की ट्रेनिंग कराएं, तो रात को आपकी अगर आपने हील पहनी हुई है जूते, तो रात को पाँव आपकी चीखे मार रहे होते हैं और पूरी टांगें आपकी रो रही होती हैं. सो अब मैं ये कहूँ कि मैं 2 हफ्ते के बाद भी उस तरह से छलांग मार के नहीं निकला बिस्तर से, तो दैट मीन्स ओ माय गॉड देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू चेंज माय प्रोफेशन, बिकॉज मुझे बोर्डम हो गया. तो दैट इज़ नाउ हाउ इट इज़. ह्यूमन माइंड को तो अभी तो, क्योंकि अटेंशन स्पैन हमारे इतने कम हो गए हैं और हमें बार बार स्टिमुलस चाहिए होता है टू गेट एक्साइटेड, या हमारी अटेंशन ग्रास्प डिपेंडेंसी बन चुकी है ना हमारी स्टिमुलस की. तो इवन अगर मैं उसमें हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कुछ इनोवेशन कर लूँ अपने उस काम के अंदर, टू मेक माई सेल्फ मोर एनर्जेटिक. और जो ट्रेनिंग का फेज़ होता है, दूसरी वाली ट्रेनिंग जो इंसान अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, उस फेज़ के अंदर बोर्डम बहुत नेचुरल फिनोमिना है. क्योंकि जितना आप दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं, उतना दिमाग थोड़ा नम होता है और आपको बोर्डम का थोड़ा एहसास होता है. आप 3 घंटे CSS एस्पिरेंट, जिसको बड़ा वो एस्पिरेंट है कि मैंने CSP बनना है, उससे वो अब
पूरी पूरी रात बैठ के तैयारी करता है, तो आप उससे पूछें पूरी रात तुम फुल जोश में और ऑल एक्साइटेड विद पैशन तैयारी कर रहे होते हो, वो कहेगा नहीं यार, मतलब इट्स नॉट, मुझे तो शायद हाँ मैं 6 कप पीता हूँ कॉफ़ी के टू स्टे अवेक, या मैं साथ साथ गाने भी सुन लेता हूँ बीच में, थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लेता हूँ, एंड इट्स वेरी टफ. उन बेचारों के हल्के पड़े होते हैं आंखों के नीचे. सो मोहम्मद अली वाली जो एग्जांपल है कि ही नेवर लाइक द फेज ऑफ ट्रेनिंग, but you have to pass that phase, you have to cope up with it. It's not a symbol of, it's not a sign of you in the wrong place. It's very natural. So coming to the final existential state, which is nihilism, sense of purposelessness, कि यार मेरा ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है. I think one reason that it arises is कि सोसाइटी ना हमेशा डिमांड करती है कि यू नीड टू हैव आंसर टू सर्टेन क्वेश्चंस. शुरू से ही बच्चा हो गया ना, उससे पूछना शुरू कर दिया कि टीचर यार व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, एज इफ इट इज़ यू आर मेंट टू हैव अ फेवरेट कलर. आई डोंट थिंक यू आर मेंट टू हैव अ फेवरेट कलर यार. इट्स यू कैन चेंज योर फेवरेट कलर एनी डे, राइट? तो लेकिन ये है कि सोसाइटी कहती है कि यार व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और सोसाइटी के अंदर फेवरेट कलर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक फेवरेट कलर है तो वो थ्रू आउट चलता ही है until you realize after some years कि नहीं यार this is my favorite color. तो इसी तरह आपका तो मेरे हाल में मरून है, पीछे बैकग्राउंड में मरून है कोड में. नहीं मेरा ब्लू है, क्योंकि I have written a whole essay on what is my favorite color यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके. वो बच्चों वाला ऐसे नहीं था. अच्छा. So it was a philosophical essay. अच्छा. So I think this question is pointless at first place. It shouldn't be there. तो लेकिन ये कि इसी तरह के बहुत सारे सवालात हैं कि यार व्हाट डू यू वांट टू बी, तुमने क्या करना है. एक बच्चा हम देखते हैं ना, एक स्टूडेंट हम देखेंगे, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने लेट्स से एक नौकरी शुरू की हुई है, तो इस स्टेज के ऊपर वो फैक्टर आ जाता है कि हम लड़के को पकड़ेंगे, हाँ भाई पढ़ रहे हो ठीक है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. ये बड़ा कॉमन सा सवाल बन चुका है सोसाइटी के अंदर, जो कि आई थिंक पूछना नहीं चाहिए. मुझे यूनिवर्सिटी में कोई पूछता था कि यार डिग्री के बाद क्या करना है, तो मैं कहता था यार 8वें सेमेस्टर में जाके जवाब दूंगा. एट दैट टाइम आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास नॉलेज आएगा और चीज़ें पता लगेंगी कि ऑप्शंस हैं क्या. लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, जिसकी वजह से और बच्चों से पूछना शुरू कर देते हैं लोग. अब इसमें क्या होता है कि यार इंसान अपना पर्पस क्रिएट कर रहा होता है, एंड रिपीटेडली एक जवाब मैंने दे दिया. अब वो मैंने जब बात कर दी तो इट बिकम्स, वो सिर्फ मेरे अंदर की बात नहीं रह जाएगी, वो एक नॉलेज बन जाएगा जो कि लोगों के को मैंने कन्वे कर दिया. एक पर्सनल चीज़ को मेरी सोशल आइडेंटिटी बन जाए. एग्जैक्टली, मैंने पर्सनल चीज़ को इम्पर्सनल कर दिया. अब उसके बाद जाहिर बात है बच्चे का दिमाग है, इट्स डेवलपिंग, न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं. हमारे दिमाग में इतने न्यूरॉन्स फायर नहीं होते जितने एक यंग माइंड के अंदर फायर हो रहे हैं, न्यू न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे हैं. तो कल को उसको कोई रियलाइजेशन होगी, उसको नई चीज़ पता लगेगी, और वो जब दोबारा शायद वो हमें कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि दोबारा बता दे कि नहीं मैंने ये करना है, तो उसके बाद शायद उसको नया आ जाए, क्योंकि वही ना उसकी एज है. तो 2-4 चीज़ें इस तरह आएंगी ना, दैट पर्सन इज़ गोना बी लाइक यार हु एम आई, मतलब कभी मैं ये करना चाह रहा था. और ऊपर वाले भी, मतलब अक्सर माँ बाप, टीचर्स, पीपल स्टार्ट सेइंग यार क्या तुम्हारा कोई माइंड सेट ही नहीं है, कभी कहते ये करना है, कभी कहते वो करना है. तो एक सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस आ जाती है. बंदा कहता है यार हम वर्थलेस, मतलब मैं मेरा माइंड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी बीइंग इन हियर, मतलब ज़िंदगी का मकसद क्या है मेरी का. सो दैट क्रिएट्स दिस सेंस ऑफ नाइलिज्म. So how do you think you can cope with, क्योंकि nihilism again वो एक state of mind है, it is gonna create a habit, यहाँ पर कोई या आपको depression दे देगी या कोई आपकी आदत बन जाएगी. So how do you cope with nihilism? Do you think purpose is something that इंसान उसको ले के पैदा होता है या फिर उसको खुद बनाना पड़ता है? Okay. So purpose, पहले तो पर्पस की डेफिनेशन हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर्पस को डिफाइन कैसे करना है. हो सकता है हम इसके ऊपर बात तो कर रहे हो, लेकिन लोगों के दिमाग में पर्पस की डेफिनेशन डिफरेंट हो. अभी मैं रिसेंटली ना एक, आई फॉरगॉट द राइटर्स नेम, ही रोट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. ही सेड कि इफ़ यू हैव फिगर्ड आउट एट द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, देन इट इज़ योर पनिशमेंट दैट यू विल बिकम दैट. Yeah, I mean I think ये पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन it's very interesting. It'll become your punishment that you'll become that person. Because वही आप वाली बात है, सोशल आइडेंटिटी बन जाती है. आप कहते रहते फिर आप बाकी एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर नहीं करते. जैसे मैं अब कैरियर कॉलेज तक तो हमें तो सिर्फ फौज बताई गई थी. फौज ही. अच्छी बात है यार, कुछ था, जवाब तो था ना हमारे पास. हमने कोई वो दुआ में भी वैसे एक ही दुआ होती, तुम्हें याद है, रट्टा लगा था दुआ का. तो बाद में पता लगा, जब ठुडा लगा कि भाई आई नीड टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि वहाँ पे तो दरवाज़ा बंद हो गया. तो देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट और भी चीज़ें हैं. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पर्पस है क्या चीज़. पर्पस इज़ नेवर अबाउट योर सेल्फ. सो पर्पस डोंट रिलेट इट विद द वर्क
or the field that you will choose. That can be categorized into passion, but it is not purpose. Purpose is very big. It's very huge. It is larger than you as a person. It is not about you. So it is about के what I want to do for people, या मेरी एग्जिस्टेंस से मैं क्या फ़ायदा देना चाहता हूँ लोगों को. अब वो किस तरह से दूंगा, दैट इज़ वट वेयर द पैशन कम्स इन. वो जो प्रोसेस होगा वो मुझे इसमें मज़ा आता है, मैं ये ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो मेरा पैशन बन जाएगा, जिससे मेरा पर्पस सर्व होगा अल्टीमेटली, जो मैंने खुद से बड़ा एक सोचा है. यू नो दैट इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फ एट ऑल. राइट. अब बात करते हैं पैशन वाली, कि मैंने कैसे चूज़ करनी है, पहले से सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए. तो लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे कम टू मी एंड दे से कि हाउ टू फाइंड माई पैशन. सो आई ऑलवेज से देम कि डोंट पुट एन और. वो कहते हैं सर ये करूँ या ये करूँ, दिस और दैट. आई ऑलवेज से पुट एन एंड, यू नो, दिस एंड दिस. बिकॉज वो एक गेम खेलते थे ना, जिसमें एक टीम कमरे में जाती है, छोटी छोटी चीज़ें छुपा देती है डिफरेंट जगहों पे, फिर दूसरी टीम आके उसको ढूंढती है. तो दूसरी टीम जब ढूंढने लगती है तो वो कैसे ढूंढती है कि वो फॉर एग्जांपल ये फ़ोन भी उठा के नीचे देखेगी, ये कपड़ा उठा के नीचे देखेगी, या ये सोफ़े को उल्टा फुल्टा करके देखेगी. द मोर यू सर्च, द बेटर आर द चांसेस दैट यू विल फाइंड दोज हिडन थिंग्स. Those could be your passion. So until or unless you haven't tried 4 or 5 things, how can you come up to a conclusion that this is going to be my passion? You know, मैंने अपने ख़ानदान में देखा, वो मिस्टर एक्स जो हैं वो IT करके बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी रखी हुई उन्होंने. तो मैंने अब सोच लिया मैंने भी वही बनना है, मिस्टर एक्स. You know, हमारी यहीं से आती हैं पैशन की इंस्पिरेशंस. बट the real inspiration will come when I'll try different things. For example, if it's digital marketing or it's IT or it's entrepreneurship or it's whatever, I get myself involved in them through social media. बेशक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मेरे पास इतना टाइम नहीं. यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर. यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ प्लेस वेयर you'll sit and learn. Because पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी तुम्हें कोई बहुत स्किलफुल नहीं बनाएगी. वो दैट इज़ द टाइम when you will try out different things. You will search for your whatever you want to do in your life, whatever you want to do with your life. So until or unless I'm not searching and putting an and instead of or, how will I find the ultimate conclusion? Even if you have found the ultimate conclusion, okay, I'll do this, and you entered into that, after 4 years you thought, okay, this is not what I want. So definitely probably this is not what you want, you try something else, obviously. So there is not a dead end to finding a passion, or you know? Purpose. तो आपने बेशक एक larger than life सोच लिया हुआ है कि this is what I want to do, I want to serve people, and अच्छा वो एक general चीज़ है. Makes sense. That is completely general, and that is not about you, and that is larger than you. And now passion is something that will help you to achieve that purpose. I think purpose is about generally, and who are the people, what group of people are you going to give to? Yes. मतलब हर किसी का अपना हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर फैमिली की हद तक भी सोचता है तो आई थिंक ही इज़ राइट कि यार मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली एंड आई हैव टू वर्क इन दैट. उसके बाद अगर सोसाइटी के लेवल पे सोचते हैं, पूरी नेशन के लेवल पे सोचता है, तो या इट कैन बी हिज पर्पस कि चलो ठीक है मैं पूरी अपनी नेशन को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई डू इट. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसकी वालदा जो हैं उनका इंतकाल हुआ था कैंसर से. तो उसने बड़ी बचपन में ही अपनी स्कूल लाइफ में उसके फादर के थ्रू उसके दिमाग में ये गया, और उसने बाद में इसको अपना वो भी बना लिया, पर्पस भी बना लिया कि मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना है. एंड व्हाट ही डिड वाज ही बिकेम डॉक्टर, और बाद में उसने कहा कि मैं जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट किया करूँगा. ऑन द अदर हैंड यू सी इमरान खान फॉर एग्जांपल, उसकी वालदा की डेथ होती है कैंसर से, और वो कहते हैं डॉक्टर तो वो नहीं बन सके, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है. तो उस पर्पस को उन्होंने किसी और तरीके से एक फंड रेजिंग करके एक इदारा बना दिया जो कैंसर का इलाज करता है. सो पर्पस, यू अंडरस्टैंड, इट इज़ समथिंग दैट इज़ अबाउट गिविंग. द प्रोसेस दैट यू विल यूज दैट विल बिकम योर पैशन. ऑल्सो डू यू थिंक कि वो पर्पस के अंदर वी हैव अ सेट ऑफ पीपल, राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्मॉलर सेट एंड देन मूव टुवर्ड्स अ बिगर स्टेप. क्योंकि कन्फ्यूशियस की भी ये वो है ना कि स्टार्ट विद योरसेल्फ, फिर योर फैमिली, and then your society, and then 100%. I am glad you brought this point. Unless or until you're not your vessel is not filled, you won't be able to give.
Yeah. मेरा अपना कटोरा खाली है तो मैं कहूँ कि मैं चल पड़ा हूँ जी वो जिहाद पे, या चल पड़ा हूँ लोगों को सर्व क्योंकि करने when के you gave this example of इमरान खान, लिए। उधर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार चलो उस बंदे ने पता नहीं कब ऐलान किया कि मैं सियासत में आ रहा हूँ. लाइक आई वॉच दिस वीडियो जब नवाज शरीफ मिलवा रहा था इमरान खान को किसी आई थिंक क्वीन के साथ, या पता नहीं कौन था, और वो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि यार मैं तो इनको कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आए लेकिन ये आते नहीं हैं. सो एट दैट टाइम इट वाज क्लियर कि उसका कोई माइंड नहीं था. Yeah, but it changed. या That's how it is. उस टाइम उसका जो वो सेट था इट वाज वेरी स्मॉल. वो इन केस ऑफ दैट कैंसर पेशेंट वाली बात, Yeah, कि उसने ये कहा था कि यार मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना है, Yeah. क्योंकि माई मदर डाइड ऑफ Yeah. कैंसर एंड आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू डाई विद, Yeah. लाइक रिसोर्सेज की कमी की वजह से Yeah. कोई ना मरे. सो ही हैड अ स्मॉलर सेट yeah, एंड दैट क्लिक्ड कि यार इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द स्मॉलर सेट. yeah. क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं Even I'll bring it even इवन मेरी ये गलती थी. Yeah. When मैं मैट्रिक में था तो मैंने कहा बस मैंने भी इमरान खान बनना है और पूरी दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान को मैंने चेंज कर देना. Yeah. एंड क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी घर से बाहर गुजारी थी, तो आई वाज़न्ट थिंकिंग एट अ फैमिली लेवल. As they say that charity begins at home, Yeah. but I say that charity begins within yourself. बिल्कुल. So unless or until you don't equip yourself or learn all those competencies and skills and become very valuable as a person, Yeah. until then you cannot give back to society. Or even financially, if you're not stable enough, you cannot think of giving back. You know, अगर जब तक आप खुद आपका पेट नहीं भरा हुआ तो आप दूसरों का पेट भरने के बारे में आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी सोचने की अपने से बाहर. सो पहले तो आप अपने आप को सेट करते हैं प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एंड देन यू start your journey of giving back. But even when you are on a journey of self development, you have this sense of purpose ke I'll be giving back to society. So that is something that keeps you going, that becomes your north star. Yeah. एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा था, it was about ideals, like having people that you idealize. लेकिन वो automatically throughout the recent discussion clear हो गया कि यार किसी हद तक ना वी डेफिनेटली नीड टू हैव आइडियल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार कोई बंदा हो जिसकी तरफ आप देख के कुछ इंस्पायर हो सकें. एंड आई थिंक यूजुअली द आइडियल्स वी हैव आर पीपल हु हैव द समवॉट सिमिलर पर्पस दैट वी हैव, लेकिन वो उसको एक बड़े लेवल के ऊपर फुलफिल कर रहे होते हैं. एंड सिंस दे शेयर द पर्पस दैट यू हैव इन योर हार्ट, इन योर माइंड, यू लुक एट दोज पीपल एंड यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट creating this way inside your head कि यार ये रास्ता है, he took this path and he is doing what I wanted to do and I want to do and I aspire to do. तो he is creating a way. तो वो मैंने सवाल को वही दे दिया, जवाब ही दे दिया. But thank you once again for coming to the podcast. I think अभी घंटे से ऊपर तुम्हारा मार्क हो गया. It was a very interesting discussion. Thank you for having me. और प्लान तो यही बन रहा है कि इंशाल्लाह we gonna start a series. एंड वी विल डेफिनेटली ब्रेक थिंग्स डाउन, उनको एक एक करके सिस्टमेटिकल तरीके से कन्वे करेंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि हम घंटे की पॉडकास्ट करें. वी कैन हैव 10 minutes 15 minute clips and talk about things that are important and relevant to people. Yeah. So एक फाइनल क्वेश्चन जो होता है जो हम हर मेहमान से करते हैं, वो आपसे पहले कर चुके हैं, लेकिन आज की डिस्कशन मैंने सोचा था कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर पाकिस्तान. लेकिन जब वो फेवरेट कलर वाली बात आई और पैशन वाली बात आई ना, तो अभी व्हेन आई कम टू दिस क्वेश्चन मैं कहता हूँ यार दोबारा सवाल पूछना चाहिए और हर बार पूछना चाहिए, क्योंकि कल शायद आपकी ड्रीम और हो फॉर पाकिस्तान एंड टुडे यू कैन हैव अ डिफरेंट ड्रीम फॉर पाकिस्तान. सो व्हाट इज़ नोमान आबिद's ड्रीम फॉर टुडेज ड्रीम फॉर पाकिस्तान? Today's dream is very relevant for today. It is that we have a hope in our country, because I've seen in the recent times that hope is something that is हल्की diminish हो रही है बिल्कुल इस country के ऊपर. And hopeless society बन रही है. for some real reasons. I don't challenge the reasons, and it's not the fault of the people. They went through a lot of troubled times, but I think hope is something that brings everybody together. अगर वही चली जाएगी, वही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर there is no society. So I think I dream of a nation that again comes together and be very hopeful about the country and about the future, because this khita has a lot of potential. मैं थोड़ा सा religious beliefs भी हैं मेरे इस जगह को लेके, तो I think that
this even the geographical location that we have, we could be the world leading, not world leading but world beating in many ways. But for that, people need to have hope, because unless you don't have hope, and you cannot bring something out of nothing. Becca. So thank you once again. Thank you for watching the episode, and do not forget to subscribe to our channel and keep supporting Pakistani Dream.